ਜਿਹੜਾ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕੈਸੇ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 75% ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਔਰ 5,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤਿਗਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੇਸ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ, ਉਹ 80,000 ਆਪਾਂ 6,000। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਔਰ ਕਰਫਿਊ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ 153 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਡੀ 72% ਹੈ। 153 ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ 155 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਇਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਆંકੜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ। ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 157 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ 3 ਨੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसना चाहुंदा कि सारा परिवार ही जो सरपंच साहब सानू करके दस के गए ने असीं मना रहे हो गल्लां नूं। अगर सारा पंजाब मनाउण लग जाए ना तो कोई कोविड ही ना रहूगा इत्थे पंजाब दे विच। तां ही मैनूं हर वेले मैं बेनती करदा तुहानूं कि तुसीं प्लीज़ डॉक्टर जो दसदे ने और जो टैलीविजन ते तुसीं दसदे हो हफ्ते बार मैं तुहानूं दसदा ये मनाओ, ये गल्लां करो तुसीं और आपां अपने पंजाब नूं बचाईए। एक मैं होर कुछ दसना चाहुंदा खास करके बच्चों नूं, मैं सोशल मीडिया ते बहुत देखदा अखबारां च भी उन्हां दे कि साडे इम्तिहान साडे बंद किए जान क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई साडी और होर कई स्टेटां दे विच होया। और मैं उन्हां नूं बार बार कहंदा सी कि यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने फैसला करना है, UGC ने, लेकिन अज मैनूं खुशी हुंदी है दसदे कि बाकी आंकड़े तो सारे प्रोग्राम सब कुछ तो थोनू जब साडी गवर्नमेंट का ऐलान ऑफिशियली होगा कल नूं आऊगा थोड़े अखबारां दे विच और थोड़े अपने यूनीवर्सिटीज़ दे विच, तुसीं उन्हां तो सारियां गल्लां मान लो। लेकिन असीं इन्ना मैं तुहानूं दस सकदा कि जिहड़ियां ने अपना अखीरला इम्तिहान है जो थोड़े रिजल्ट उस तो 1 साल पहला आए ने और अगर वो ठीक रिजल्ट ने उहदे विच तुसीं अपनी यूनीवर्सिटी के मुताबिक पास होए हो फिर तुहानूं एग्जाम करने की लोड़ नहीं है। ये असीं कॉलेजिस यूनीवर्सिटी दे विच होया, जिहड़ियां 10वीं जमात असीं पहलां ही अनाउंस कर चुके, जिहड़ी 12वीं जमात है उहदे विच हुण असीं एक्सपैक्ट करते हैं कि बड़ी जल्दी वो गवर्नमेंट सानूं दसेगी इहदे बारे और अगले 2-3 दिन च तुहानूं ऐलान हो जाऊगा 12वीं के बारे। लेकिन जिथे ताईं यूनीवर्सिटीज़ है, यूनीवर्सिटीज़ का मैं तुहानूं दस चुका हुण यूनीवर्सिटीज़ भी तुहानूं दसणगे जो कुछ साडा फैसला होया और साडे अपनी सरकार का जिहड़ा हायर एजुकेशन महकमा है वो तुहानूं कल ताईं ये सारा ऐलान अखबारां दे विच आ जाना है। तो तुसीं हुण पढ़ो, इहदा मतलब ये नहीं कि घर बह के तुसीं कुछ ना करो, पढ़ो क्योंकि अगे तुसीं अपनी जिंदगी बनानी है तो तुसी BA डिग्री लै लो या MA डिग्री लै लो इस तरीके नाल, लेकिन पढ़ो अगे वास्ते ताकि तुसी अपनी कुछ बना सको अपने बारे, अपनी जिंदगी बारे। एक गल जो मैं थोड़े नाल करना चाहुंदा सी वो है ये जिहड़ा टिड्डी दल हुण घुम रहा इत्थे, बड़े सालों तो नहीं आया लेकिन हुण फिर अपने इधर आया, मेरा ख्याल अफ्रीका तो आउंदा है, फिर अफ्रीका तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो इधर, और 100 किलोमीटर लंबी डारा ने और जिथे बहते ने एक बार वो तबाह करके जाते हैं। पहला आए राजस्थान तो गए यूपी तो मध्य प्रदेश और हुण उधर राजस्थान उधर ही घूम रहे हैं। तो उदों मैनू डर सी कि इधर शायद पंजाब दे विच आ जाण, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं लिखिया सी कि तुसीं हैलीकॉप्टर की इजाजत दिओ जिहड़े हैलीकॉप्टर दे विच जाके उन्हां दे विच छिड़काव करन और उन्हां नूं मार देण। और उन्होंने मेरे ख्याल मान ली गल क्योंकि एक मिलिट्री हैलीकॉप्टर एक MI-17 है चंडीगढ़ तो उसनूं ओहदी तैयारी की हुई है कि जदों दल आए इस वेले राजस्थान के एरिया फिर बढ़न लग गया, शायद उत्थे भेज रहे हैं ताकि इधर आए ही ना, उधर ही जाके उन्होंने उत्थे खत्म कर दे। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साड़ी गल मान ली है और ये हैलीकॉप्टर की तैयारी हो गई इत्थे चंडीगढ़ और ये हुण जाणगे जब दल मध्य प्रदेश ना अपने राजस्थान में आ जाए उत्थे पूरा करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी गल मैनू कई साडे फौजी जिहड़े वीर ने मेरे उन्होंने मैनू लिखा है कि जिहड़े एक्स सर्विसमैन PCS एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उन्होंने सिर्फ 4 बार इन्होंने इजाजत है कि 4 बार तुसी अटैम्प्ट कर सकते हो कोशिश पास होने की, और असी ये 4 बार तो बहुत घट है, असी ये ज़्यादा चाहते हैं। तो खुशी है मैनू कि सानू हुण जनरल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन वास्ते 6 बार इजाजत मिल गई है, तुसी कर सकते हो अटैम्प्ट थोड़ा, और BC कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन 9 बार, और जिहड़े SC साडे एक्स सर्विसमैन ने उन्हां वास्ते जिन्नी बार वो करना चाहन कोई रुकावट नहीं वो कर सकते हैं। तो खुशी इस गल की है कि 4 अटैम्प्ट तो हुण 6, 9 और जिन्हें करना चाहन उन्हें भी ऐसी कैटेगरी वास्ते खुला है हुण काम। तो तुसी जिन्हां ने करना है
जरूर अपने इम्तिहान वास्ते तैयारी करो और आओ PCS एग्जामिनेशन वास्ते ताकि तुसी भी पंजाब की सेवा कर सको। होर हुण सवालों के बारे में कुछ तुहानूं देना चाहुंदा जवाब, जिस करके आपां इह करदे हां कैप्टन प्रोग्राम। एक तां तुसीं मैनूं पहला पुछिआ है कुलदीप कौर रंधावा ने सठियाले तो कि 400 साला आपां प्रकाश पुरब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब दा आपां मना रहे हैं, कितना पैसा तुसीं इहदे विच एलोकेशन तुसीं कीती है। बीबा जिथे ताईं गुरु साहब का सवाल है, चाहे कोई भी गुरु साहबान साडे होण, इन्हां ते आपां पैसिਆਂ नाल नहीं गिंदे, जिन्नी लोड़ पऊ सानूं मनाउण वास्ते और बड़ी धूमधाम नाल मनावांगे वो पैसे पंजाब सरकार लाऊ। पर पैसिਆਂ की गल ना करिया करो जिथे गुरु साहब का मसला हुंदा है। गुरु तो साडे उन्हां करके तो आपां सारे बसे हो रहे, तो जिहड़ा कुछ साडा है वो गुरुआं दा ही है और गुरु साहब दे मनाउण वास्ते असीं कोई घाट नहीं छड्डनी किसी गल दी। ये पुछ रहे ने गुरप्रीत गिल जी कि मैं थोड़ा पोस्ट देखिया सी पंजाब दे उपर, जदों महाराज रणजीत सिंह के समय तो 5 नदियां साडे होंदियां सी कंट्रोल च, हुण असीं 13 MP रह गए हैं हिंदुस्तान, जो असीं एंटी फार्मर ऑर्डीनेंस भी नहीं रोक सकते। गल थोड़ी सही है, इतिहास हुण गवाह है जिहड़ी गल्लां नूं। चमरौत तो लैके दिल्ली तक महाराज साहब का राज हुंदा सी और साडा पंजाब हुंदा सी, और इत्थों फिर अद्धा दा 47 चला गया, पाकिस्तान बन गया, और जिहड़ी थोड़ी कसर सी अकालियां ने कढ़ती, जिहड़ी हरियाणा बनवाता, अपना पंजाबी सूबा बनाउण लई साडा सारा हिमाचल देता, कांगड़ा तो लैके शिमला वगैरह सारा देता उधर, और इधर सारा हरियाणा इत्थों चंडीगढ़ तो लैके दिल्ली तक वो देता। तो यही जी गल्लां जदों दूरअंदेशी ना होवे किसी सियासी ग्रुप दे विच, फिर यही हाल होगा। पंजाब हुण तुसीं अस देख लो कि साडे पंजाब दी किसानी दे कोल 105 लाख एकड़ जमीन है और हरियाणे कोल 80 लाख एकड़ जमीन है। कितना असीं दे बैठे हैं, कितना हिमाचल दा टूरिज्म पोटेंशियल, फॉरेस्ट, इरीगेशन पोटेंशियल सारा असीं दे बैठे हैं। तो ये गल्लां जिहड़ियां जिहड़े पॉलिटिशियन करदे ने ना, सिर्फ अपने पार्टी बनाउण वास्ते या अपने हल कोई कढ़ण वास्ते, और तुसीं पंजाब अपने सूबा ही तोड़ दिओ, तो फिर यही हाल होना है। हुण जिथे अगर साडे कोल पार्लीमेंट दे विच यह जी हुंदा ना जमरौत तो उरे तक, तो तकरीबन 70-80 साडे कोल MP होने से, और साडी गल चलनी सी दिल्ली च। हुण 570 दे MPयां दे विचों अगर 13 असीं रह गए, कौन पुछूगा साडी गल, कौन सुनूगा साडी? तां ही एंटी फार्मर ऑर्डीनेंस वगैरह सब कुछ करी जाते हैं, जो करते हैं दिल च कर दिओ, क्योंकि पंजाब कुछ नहीं कर सकता इहदे बारे। तां ही मैं कहना तुहानूं कि अगर ये ऑर्डीनेंस एक बार बन गए, इन्हां ने हुण विधान सभा लोक सभा दे विच आ जाना है, और लोक सभा ने इनू बिल कन्वर्ट करके इनू पास कर देना, पास करके फिर हिंदुस्तान का कानून बना गया। तो हुण 570 MP थोड़े कदे आके लगणगे उत्थे, 13 ने तो थोड़े की बनाना, की कर लांगे आपां 13 नाल, पंजाब नूं खत्म कर लांगे आपां। यही पहला सी जदों पंजाबी सूबा बनाया अकालियां नूं, यही हुण कर रहे ने। पहला तो तुसीं पंजाब का बंटवारा करता, हुण तुसीं किसानी साडी रोल दोगे पंजाब की। मैं बार बार कहना है, पर इन्हां नूं तां अपनी सिर्फ पई हुई है कि मेरी मिनिस्टर रहे उत्थे दिल्ली दे विच हरसिमरत कौर, और मैं इत्थे मुखी रवां, और मेरी इत्थे सरकार बनती रहे। जदों तुसीं ऐ सुनो तो की तुसीं सरकारी किहड़े सूबे के उपर करोगे? सब कुछ तक खो के बह गए तुसीं, और खोजोगे जिस तरीके नाल चल रहे हो कि तुसीं कदे पंजाब का नहीं सोचते, तुसीं सिर्फ अपना सोचते हो। फिर तुसीं +2 की गल मैनूं PSCB बोर्ड वालियां ने दसी। मैं तुहानूं दस्सां कि CBSE का की ऑर्डर इस बारे में अगले 2-3 दिन तुहानूं आ जाना है। तो ये सी साक्षी गंबर फाजिलका तो उन्होंने मैनूं ये पुछया सी कि साडे इम्तिहान के बारे +2 का की हो रहा है। अगले 2 दिन या 3 दिन तुहानूं इत्थों CBSE वाले ने ऐलान कर देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सवाल कई दिनों तो उठा हुआ है। ये जिहड़े 3 ऑर्डीनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीते ने, जो असी समझते हैं 100% किसानी के खिलाफ ने, उहदे विच किसान यूनियन की सारियां दी मेरी मीटिंग हो चुकी,
सारे ओपोजिशन पार्टियां की मेरी मेरिट हो चुकी और अकाली दल और बीजेपी नूं छड्ड के सारे एक पासे बैठे ने कि एक किसानी के खिलाफ है। ये अगर तुसीं इहदा निचोड़ कड्डो ना तो एक शांता कुमार जी हुंदे से जो हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री कई बार रहे 2-3 बार, उन्हां दी कमेटी बनाई सी और उन्होंने अपने रिपोर्ट किया सी कि ये जिहड़ी MSP है एक गलत है, इनू बंद किया जाए और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की कोई लोड़ नहीं जिहड़ी खरीद करती है उन्होंने भी चक दो। हुण ओहदा जिहड़ा निचोड़ है वह कढ़ के इन्हां ने ऑर्डीनेंस बना दिते और जो मर्जी सुखबीर बादल कहे, अकाली दल कहे या बीजेपी कहे, इन्हां ने एक बार ये ऑर्डीनेंस नूं कानून बनाता ना पार्लीमेंट, फिर अगला कदम ये होएगा कि फूड कॉरपोरेशन खत्म करेंगे और MSP खत्म करेंगे और तुसी देख लो पंजाब किसानी का की बनूगा अगर आ काम होंदा रहे। इस करके मैं आपनू बेनती करना चाहुंदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ सुन रहे हो कि इस गल नूं बड़ी गंभीरता नाल तुसी लओ और पुछो इन्हां अकालियां नूं कि तुसी अपनी सियासत खेल रहे हो, क्योंकि उन्हां दी इत्थे दिल्ली दे विच एक मिनिस्टर अपना बिठाए बैठे ने कैबिनेट दे विच जो बीबी बादल है और ओह कोई कदम नहीं उठ सकता जब तक कैबिनेट नहीं पास करती और वह कैबिनेट में इन्हें हाँ की होनी है, तुसीं उन्हें पुछ लो। और यही हाल है इत्थे अकालियां दा, क्योंकि बीजेपी दे नाल इन्हां दी इत्थे गठजोड़ है, इस करके ये कोई समझते ही नहीं। ये जिहड़ा कुछ बीजेपी नूं खुश करने वास्ते ये अपने पंजाब की किसानी नूं बेचना चाहुंदे ने, आही हाल है। सारी पंजाब असीं इकट्ठे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी नूं लिख रहे हैं कि असीं उन्हां दे कोल एक ऑल पार्टी मीटिंग और जिहड़े साडे नुमाइंदे ने वो आके असीं नूं मिलना चाहुंदे ने और साडे किसान यूनियन वालियां नूं असीं भेजांगे ताकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं भी मिलन और अपने वल्लों जो गल्लां ने पंजाब दीयां दस्सण। नहीं असीं तुसीं देखदे रहना, पंजाब दी किसानी बिल्कुल थल्ले जाऊगी जिस तरीके नाल। मैं तुहानूं दस्सां, एक मिसाल दिंदा, MSP अज मक्की का 1700 रुपये है। जिस दिन MSP साड़ी हुई सी ऑल पार्टी मीटिंग उस दिन सवेरे थोड़ी हुशियारपुर के मंडी दे विच मक्की बिकी सी 600 रुपये क्विंटल। 600 रुपये क्विंटल जो अज बिक रही है और MSP है 17। हुण तुसीं समझ लो कि की होगा जदों MSP चक लैणगे। कणक ते की होऊ असर, झोने ते की होऊ, होर फसलां जो आपां बीजदे उन्हां ते की होऊ, आ होगा जो मैं तुहानूं दस रहा। जो मौजूदा कीमतां ने जो मिल रही ने आपां नूं अपने MSP और मंडियां विच आपां खरीदा चाहे मंडियां भी चक देणगे सब कुछ। APMC एक्ट जिहड़ा साडा मार्केटिंग कमेटी का एक्ट है सब कुछ चक देणगे। ये हाल बनाना है साडे पंजाब दा। ये मैं उदों भी कहा सी कि हुण क्योंकि होर हिंदुस्तान के सूबे अज वो अन्न चौल वगैरह कणक मध्य प्रदेश वगैरह होण लग गई, हुण पंजाब की किसानी की इन्हां नूं लोड़ नहीं। बड़ी सिंपल गल है कि 60 साल पहला जदों ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होया उदों पंजाब हिंदुस्तान भुखा मर रहा सी और अमरीका वगैरह तो असीं खरीदे से चौल और कणक वगैरह। हुण फिर जाके इत्थे हालात बन गए कि हुण सारे सूबे बनाउण लग गए, चौल पैदा करन लग गए। और अज एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे को चौल पे ने अपने गोदामां दे विच जो 3 साल नहीं मुकदे। उस करके हुण पंजाब दी उन्हां नूं कोई लोड़ नहीं। सानूं निचोड़ के सब कुछ कढ़ के सानूं हुण बिल्कुल एक पासे सिट रहे हैं। तो इस करके जरूरी है तुसीं ये अकालियां दी और BJP वाले दी गल्लां च नहीं आउणा। तुसीं ये जो सारा पंजाब कह रहे हैं, किसान यूनियन कह रहे हैं, असीं कह रहे हैं, होर पंजाबी सरकारां साडी पोलिटिकल पार्टियां ने कह रही ने, उन्हां दे नाल तुसीं ये गल अपने मन च बसा लो। ये गल्लां बाकी लड़ाई असीं लवांगे और सेंटर नाल असीं जावांगे उत्थे। ये सवाल मैनूं कीता सीगा गुरजंट पवार जी ने धर्मकोट तो। राजेश गर्ग जी पटियाले तो कहने ने कि साडे असीं उरे बायोमैस ब्रिकेट्स बनाउने आ पटियाले विच। थोड़ा पिंड अपना ककराड़ा पिंड है समाणे की सड़क ते और समाणा डिस्ट्रिक्ट कोल, लेकिन उत्थे दे एक तां साडी ट्रिपिंग हुंदी है बिजली दी और एक साडी सड़क उत्थे खराब है। हुण समाणे की सड़क तो वधिया होगी लेकिन लिंक रोड होनी है। ये मैं दोनों चीज़ां थोड़ियां चैक करवानियां अज
कि ट्रिपिंग क्यों हो रही है और ਇਹਦਾ कोई प्रबंध करांगे और नाले ਜਿਹੜੀ थोड़ी सड़क है ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। एक ननीत कौर जी लिख रहे हैं जलंधर तो कि साड़ी सेंटर आयल्स ट्रेनर सेंटर जलंधर का बंद पे मार्च ताई इनू खुलवाओ। बेटा मैं तो खोलना चाहना है लेकिन ये साढ़े जैसे ये जड़ा हुण ये अपना कोविड का मसला है ये नैशनल डिजास्टर एक्ट के अधीन आउंदा, साढ़े कोल नहीं ये कोई अधिकार और ये असी होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट चलाउंदी है और वो जदों सानू जिहड़ा कुछ भेजते हैं सानू करना पैंदा है। अगर स्टेट डिजास्टर एक्ट होंदा तो मेरे हथ च हुंदा, लेकिन अगर तुसी कर रहे हो नैशनल डिजास्टर और दिल्ली का फैसला करते हैं पूरे हिंदुस्तान नहीं और उन्हों का हुण इस वेले कोचिंग सेंटर्स वगैरह बंद रखे ने उन्होंने और कहते हैं कि असी हाले खोलन नहीं देने, तो ये मेरे हाथ तो बाहर है। लेकिन मैं जरूर उन्होंने इन्फॉर्म कराँगा कि हुण पंजाब दे विच सुधार आ रहे हैं, सानू इजाजत दे दो इस ये काम करन दी, अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुलाउण दी। एक तुसीं ईशान ग्रोवर जी अबोर्ड तो पूछ रहे हो कि 9 एयर इंडिया फ्लाइट कैनेडा गईयां सीआं 2 मिनट च बुक हो गई। मेरा इम्तिहान हैगा सैशन स्टार्ट कर रहा है सितंबर दे विच, इहदा विच गवर्नमेंट साडी हेल्प करे कुछ। देखो मैं ये जरूर चैक कराँगा कि होर फ्लाइट्स कोई जाते हैं तो असी थोड़ा नाम उहदे विच मैं देऊँगा, लेकिन मैं आस करदा है कि सितंबर तक शायद इंटरनेशनल ट्रैवल ही खुल जाए। आई होप ये खुल जाएगी क्योंकि बहुत लोग ऐसे फसे हुए ने, मैनू चिट्ठियाँ और स्नेह बड़े आउंदे ने वख-वख मुल्कां तो कि असीं फसे हुए हैं, असीं आउणा चाहुंदे हैं वापस, लेकिन सिर्फ किते ये फ्लाइट्स जा रही ने। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई फ्लाइट प्रबंध होया और एयर इंडिया की फ्लाइट जान गया थोड़ा नाम जरूर देवांगे, पर तुसी भी ये करना है काम कि थोड़ा कौंसलेट है उत्थे कौंसलेट नूं भी तुसी जरूर लिख देना कि मैं पढ़दा उत्थे और वो उतों भी लिस्ट कैनेडा तो भी लिस्ट आ जाती है और बाकी जो असी इत्थों करना है वो असी इत्थे भी थोड़ा ना इधरों भेज देंगे, लेकिन उधरों भी आ जाए तो चंगी गल है कि तुसी वो तो बोनाफाइड एक विद्यार्थी हो जो अपनी सैशन थोड़ा स्टार्ट हो रहा है तो वो भी भेज सकते हैं उत्थों। तुसी मैनू पुछ रहे हो अमित सहारन जी चंडीगढ़ तो कि खरड़ फ्लाईओवर कदों खुलूगा। 6वीं बार डेडलाइन टप गई, ये तो हुण तो 4 महीनों तो बंद पे है, तो कई सालों का एक खरड़ में फ्लाईओवर देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इट्स नैशनल हाईवे, ये स्टेट हाईवे नहीं है, लेकिन ये बावजूद मैं थोड़ा दसना चाहता कि काम शुरू हो गया और हुण ये एक्चुअली खुल जाना सी अगर जिहड़ा कोविड ना हुंदा। मैं आस करदा कि हुण दोबारा जैसे इन्होंने अलाउ कर दिता है कि यदि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए जल्दी मुक्कांगे और शायद जिहड़ी तुसीं कह रहे हो 6वीं वारी 7वीं वारी च असीं इहनूं खोल देवांगे और खोल देवांगे जल्दी, क्योंकि मैं जानदा इस प्रोजेक्ट नूं। ये समा खरड़ दा जिहड़ा बाईपास है ये तो मेरी गवर्नमेंट उदों मैं बनवाया सी जदों अज तो किन्ने साल हो गए, मैं 2002 तो 7 तक सीगा उहदे मुख्यमंत्री पहला, उस दे दौरान असी ये बाईपास बनवाई सी, लेकिन ये फ्लाईओवर उत्ते फसे हुए से जिहड़े हुण नैशनल गवर्नमेंट ने उन्होंने अपने PWD ने टेकअप किया है। दलजीत कौर जी पटियालियों कि ये जिहड़े फैसला होया कोर्ट का ये खिलाफ अपने स्कूल फीस का ये कहते मैनू बिल्कुल पसंद नहीं तो तुसीं इहनूं सुप्रीम कोर्ट लैके जाओगे। बेटा सुप्रीम कोर्ट जाने की लोड़ ही नहीं, आपां रिव्यू पटिशन हाई कोर्ट च पा रहे हैं और असीं इहदी पूरी थोड़ी इहदी डिफेंस करांगे। मैं भी ये थोड़े नाल सहमत है, बिल्कुल गलत है। अगर तुसीं नहीं जा रहे स्कूल च कैसे थोड़ी फीस लगा सकते हो। आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट जिहड़ा हाई कोर्ट का फैसला है और असी भी इस टेकअप रिव्यू पटिशन राही कर रहे हैं। एक बड़ी दुख वाली गल है जो मैं अज देखी है कि एक पहली अप्रैल 2014 मनप्रीत जी एक एक्सीडेंट दे विच आ गए से और ये ट्रक इन्हां दे उपर ही लंघ गया सी।
राइट इन्हां दी अखीरली सज्जे पासे की टंग एम्पूटेट हो गई तो परिवार ने 40 तो 45 लाख रुपया लाया इन्हां दे ऑपरेशन ते। गवर्नमेंट ने उदों, ये साडी गवर्नमेंट तो बाद की गल है, उन्होंने उदों इन्हां नूं सरकारी नौकरी देने का वायदा किया सी और 6 साल तो कोई गवर्नमेंट एड भी नहीं इन्होंने मिली। इन्होंने MA पंजाबी की है, B.Ed की है, M.Phil की है पंजाबी, UGC एंड JRF क्लियर ने। तो वो पूछ रहे से कि मेरा की बन सकता है। मैं थोनों एक गल कह देना है, जो गवर्नमेंट ने की है पहला वो अकाली गवर्नमेंट सी, मैं उन्होंने बारे नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जेड़ा थोड़े नाल होया है और जो कमिटमेंट हुई है थोड़े नाल, वो पंजाब गवर्नमेंट की कमिटमेंट है और असी पूरी करके देवांगे, थोनों देवांगे, गिव यू अ जॉब और तुसी राजी रहो, मेन थिंग का राजी रहो। ए मनप्रीत कौर जी फाजिलका दे सीगे। डॉक्टर अर्जुन चावला पटियाले तो पूछते हैं कि रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स की और हैल्थ डिपार्टमेंट की, थोनों पता है कि असी हुण पिछले कैबिनेट 2-3 दिन पहला पास किया है, नवे रिक्रूटमेंट वगैरह होएगी, कमिटीज़ बन गई ने और थोड़ी कमेटी की अनाउंसमेंट बड़ी जल्दी हो जानी है, जिसी डॉक्टर्स वास्ते, सीनियर डॉक्टर्स वास्ते, पैरामेडिक्स वास्ते, नर्सिस वास्ते सब कुछ। और जो जो थोड़ी कमिटीज़ ने तुसी उन्होंने थोनों बुला लैणगे अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव जी है साड़ी शुरू, क्योंकि साढ़े वास्ते ये बहुत ज़रूरी है इस वेले विद कोविड एंड करोना, और ये भी नहीं पता कि कितनी देर चलना है। सानू डॉक्टर्स और साडा हेल्थ स्टाफ सानू उन्होंने लाने की बड़ी लोड़ सी, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ स्पैशल डिसीजन, यदा फैसला लेता है कि अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वगैरह आप इंक्लूड करिए। मणिकरण जी सरदाना फिरोजपुर तो पहला कहते हैं कि चीन दे विच बड़ा हालात टेंस ने, पाकिस्तान हर वेले गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं और ये दोनों कट्ठे ने, दोस्त ने। तो असी बस मुल्क का चाहते हैं कि हालात, मैनू कहते हैं यू आर प्राउड यू आर लीडिंग पंजाब, ये तो मैं कहना नहीं चाहता सी, बट बेसिकली उन्होंने फिक्र है कि इसका, पर तुम फिक्र ना करो, हिंदुस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है, मुल्क साढ़े बड़ा तगड़ा है, चाहे चीन कट्ठे साढ़े नाल लड़े या पाकिस्तान कट्ठे लड़े या रल के लड़न, असी हुण साड़ी फौज इस वेले, तुसी मेरा ख्याल कदे कदे पढ़ो ना कोई मिलिटरी जर्नल्स वगैरह, तुम देखोगे कि अज 4 नंबर ते दुनिया दे विच साड़ी फौज मनी जाती है। सो देयर इज नथिंग टू फेयर, कोई डर की कोई लोड़ नहीं, और वाहिगुरू की कृपा नाल पंजाब और हिंदुस्तान बिल्कुल सुखी रहो। इस कमलदीप सिंह जी बंसल पुछ रहे हैं कि साडे पंजाब केसरी लाला राजपूत राय जी का घर जिहड़ा जगराओं दे विच है, ये हालात बड़े माड़े ने। हुण मैं कई बार गया उत्थे, मैनू तो उदों ठीक लगे, लेकिन अगर यही जी कोई गल बनी है, मैं हुण एकदम अपने कल्चरल मिनिस्टर नूं कहूँगा कि इहदा जाके देख के आउण और जिहड़ा उहदा प्रबंध करना असीं उहदे ठीक ठाक उसनूं करांगे। वो तो साडे एक बहुत मन्ने हुए एक फ्रीडम्स फाइटर से, और असीं उन्हां दा जिहड़ी निशानी है उन्होंने असीं बिल्कुल उहदे संभाल के रखांगे। जसकरण जी कहते ने कि साडे शहर बड़े, मैं लुधियाने तो है, बड़ा साडा शहर बड़ी तेजी नाल, क्योंकि डिटेल प्लैनिंग है बेटा, हर बड़ी सिटी का साडा मास्टर प्लान बनया हुआ है। पुराना सिटी शहर नूं तां सिर्फ असीं उहदी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन जिहड़ी आले दाले की जमीन और जिस तरीके नाल एक्सपेंशन हो रही है, दैट इज़ ऑल अंडर मास्टर प्लान, और मास्टर प्लान के मुताबिक चलना पड़ू। अगर कोई थोड़ा कोई शक है कि कोई एरिया थोड़ा मास्टर प्लान के खिलाफ चल रहा है, मैनू जरूर तुम दसो, मैं यदा वी विल चैक इट अप, ਇਹਦਾ हल कढ़ांगे ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ मैनू अज मनदीप सिंह जी घनौर तो राजपुरे तो लिखते हैं कि मेरा सरपंच आया मेरे घर च ते थोड़ा मिशन फतेह के बारे मैनू दसिया, तो असी सारे परिवार वाले असी अपने पिंड नूं और सारे पिंड वाले असी थोड़े जो तुसी कह रहे हो असी ये मुताबिक चलांगे, ताकि कोरोना नूं असी
ख़त्म करना है पंजाब। मैं धन्नवादी ਹਾਂ मनदीप। मैं आस करदा ਹਾਂ कि सारा पंजाब ही थोड़ी ये गल सुने और तुसीं अपने अपने पिंडां नूं और अपने मुहल्लियां नूं विच जाके सारिਆਂ ਨੂੰ जागृत करो और मिशन फतेह दा आपां सफल कराइए ताकि पंजाब दी भविख कोई बन सके और पंजाबी बिल्कुल सुरक्षित रहन। तुसीं एक मैनूं पुछिआ कमलजीत सिंह महल ने लंबी तो कि तुसीं क्या सी कि बजट सैशन विच कि स्टेट ते असीं 400 एंबूलेंसिस लियावांगे, उन्हां दे नंबर पूरे करांगे 400। तो हुण किन्ने एंबूलेंस हो चुके ने पंजाब कोल? थोड़े कोल ये सी कि 248 साडे कोल एंबूलेंस सीगे, उहदे विचों 60 एंबूलेंस हुण आ रहे ने, 15 दिनों के उरे पहुँच जाएंगे और उस तो बाद 40 होर अगले कुछ दिनों 100 नवे हो जाएंगे। 248 पहला तो 348 रह जाएंगे, थोड़े 50-60 वो असी इस साल देखिए ताकि इन्हों पूरा कर लेंगे। ये हर नौजवान चाहता है पंजाब च। ये लिखा सरपंच जगसीर संधू लोहा खेड़ा संगरूर तो। ये कहते हैं कि मेरे पिंड दे विच कई असी फौज दे विच और पुलिस सर्विस जाना चाहते हैं, लेकिन पहला स्टेडियम की सानू लोड़ है अपनी हैल्थ वगैरह बनाने लई, ते साडा जिहड़ा नेड़े तो नेड़ा स्टेडियम है बड़ी दूर है, इस करके मेरे पिंड विच एक बना दो। हुण ये मैं चैक करदा कि किहड़े पिंड दे विच बना रहे, लेकिन मैं तुहानूं एक ये दसदा कि जो साडा फैसला है कि एक बहुत बड़े स्टेडियम 5 स्टेडियम बनावांगे हर ब्लॉक दे विच, और पूरे पंजाब दे विच असीं इस साल 750 स्टेडियम बनाउण दा फैसला किया है। तो 5 हर ब्लॉक दे विच 5 स्टेडियम और 750 हो जाएंगे पूरे पंजाब दे विच इस साल। तो मैं चैक करूँगा कि थोड़े लोहा खेड़ा दे विच थोड़ा पिंड चुनिया या पता नहीं किहड़ा चुनिया, और तुहानूं दसांगे जरूर कि किहड़ा कित्थे थोड़ा स्टेडियम बन रहा। तो ये सवाल से थोड़े अज दे, और अगले हफ्ते फिर आप मिलेंगे, फिर गल्लां करांगे। कई गल्लां ने जिहड़ियां आ जांदियां ने, हफ्ता तो बहुत लंबा समय हुंदा है और कई गल्लां हुण बड़ी तेज़ी नाल हालात बदलते रहंदे ने। तो जैसे कोई गल होएगी तुसीं जरूर लिखना मैनूं, और मैं उहनां तुहाडे नाल जरूर गल करके कोशिश करांगा कि मैं ये प्रोग्राम रखिआ इस वास्ते कि हर पंजाबी नूं पता होए कि तुसीं साडी सरकार बनाई सी, साडी गवर्नमेंट बनाई है। और मैं आस करदा है कि जिस तरीके नाल साडी आपसी मेल सी, एक साडी सोच सी आपसी, ताही तुसीं सानूं वोटां पाईआं सी कि साडे विच कोई फर्क ना होवे। जो गल्लां असीं करदे हां, जो तुसीं चाहुंदे हो सरकार देखे उसनूं, और जो असीं कर सकदे हां या नहीं कर सकदे तुहानूं असीं देख सकदे हां। मैं बिल्कुल ओपन सरकार चाहुंदा। मैं कोई ये नहीं चाहता कि कहिए कुछ और करिए कुछ जो आम तौर पर सरकारां करदियां ने। सीधी गल मैं थोड़े नाल करना चाहुंदा कि इन्ना हो सकता है, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, ताकि तुसीं भी ये मंच बसा लो कि कित्थे ताईं असीं जा सकते हैं। पंजाब औकड़ां बड़ियां आउंदियां ने, खास करके आर्थिकता साडी पंजाब दी अच्छी नहीं, और हुण होर भी बिगड़ूगी एक करोना दे नाल। तो साडे जिन्नी भी साडे कोल गुंजाइश है लाउणी है पंजाब वास्ते, लाउणी है तुहाडे वास्ते, और लाउणी है तुहाडियां जिहड़ियां तुहाडियां मंगां ने इन्हां वास्ते, ताकि असीं थोड़ा अपने पंजाब नूं रल के अगे वधाइए। बहुत थोड़ा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय हिंद।